নয়া শিক্ষানীতির বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এই মুহূর্তে বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সরাসরি চলে যাব। And affordability, themes that run through many of the reforms brought about by the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Another significance of the new education policy 2020 is that it has come after one of the largest consultation processes in the history of the educational systems globally. This reflects the resolve and vision of our leadership to situate India at the top of the knowledge economy. As we celebrate Amrita Mahotsav, or 75 years of India's independence, the NEP will be the guiding philosophy that will nurture, inspire, influence and groom children who today fall between the age of 5 and 15 years. The same category of impressionable and valuable human resource will be the peak of productive age of between 30 and 40 years when the India hits the mark of 100 years of independence or Azadi 100. New Education Policy 2020 prepares this age group as global citizens who exhibit the keen disposition to shoulder collective responsibilities in the face of natural disasters or finding solutions for issues that confront humanity as a whole, solutions that cut across boundaries of culture. The resilience and survival of civilization is a direct consequence of the clarity of thought and its possible people. New education policy prepares our youth to be the flag bearers of a global community which bases itself on scientific thought, critical thinking and humanism. This is the PM Modi's vision and government's mission that we will try to best of our capabilities to implement in letter and spirit. I also take this opportunity to express my sincere gratitude to Dr. Kasturi Rangan and the team of superior intellectuals and academics who drafted this landmark document. I again thank Honorable Prime Minister Modi ji for his presence today and his persistent guidance to the education sector. Sir, I welcome you to this program. Thank you. धन्यवाद सर। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, आपकी अनुमति से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत अब तक की उपलब्धियों पर एक लघु फिल्म प्रस्तुत है। 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार 34 वर्षों के अंतराल के बाद एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई। उद्देश्य था नई पीढ़ी को नई सदी की मांग के अनुरूप योग्य बनाना। ये पॉलिसी 21वीं सदी के नौजवानों की सोच, उनकी जरूरतें, उनकी आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को देखते हुए बनाने का व्यापक प्रयास हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऑनलाइन शिक्षा को प्राथमिकता और प्रोत्साहन दोनों दिया गया है, जिसके सफल परिणाम कोरोना महामारी के दौरान भी सामने आए। पीएमई विद्या कार्यक्रम के अंतर्गत ऑनलाइन, टेलीविजन एवं कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से पढ़ना लिखना चालू रहा। वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्रेरित दीक्षा में स्कूल पाठ्यक्रम पर आधारित 1,85,000 से अधिक ई कंटेंट 32 भाषाओं में उपलब्ध किए गए। एक वर्ष में इस प्लेटफॉर्म पर हिट्स की संख्या 200 करोड़ से बढ़कर 2300 करोड़ हो गई है। जेईई एंड नीट की ऑनलाइन परीक्षाएं भी हुई, जिससे किसी विद्यार्थी का कोई सत्र व्यर्थ नहीं होने दिया गया। अभी नया सिस्टम आ गया, ऑनलाइन क्लासेस होने लगी है, तो जो हम स्कूल नहीं जा पा रहे थे अब हम वो घर से पढ़ सकते हैं। यूजीसी ने ऑनलाइन शिक्षण के नए दिशा निर्देश जारी किए। ऑनलाइन कार्यक्रमों की संख्या अब 37 से बढ़कर 216 और संस्थाओं की संख्या 7 से बढ़कर अब 41 हो गई है। ऑनलाइन शिक्षण के लिए निर्मित स्वयं MOOCs पोर्टल, जिस पर वर्तमान में 814 डिग्री और डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध हैं। गत वर्ष में 54 लाख छात्रों ने उस पर एनरोलमेंट कराया। इस नई नीति से भारत में पढ़ने आए विदेशी बच्चों को भी हमारी सुदृढ़ व्यवस्था का लाभ मिला है। I'm from Cameroon. I'm very thankful for the government of India to give me the opportunity to pass off my
education here in this great university. एक तरफ निष्ठा के अंतर्गत लगभग 24 लाख प्रारंभिक स्तर के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है, तो गत एक वर्ष में स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय द्वारा 1 लाख स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत सार्थक की रचना हुई, जो स्कूली शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुचारू क्रियान्वयन के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान है। इसी नीति द्वारा राष्ट्रीय अभियान निपुण भारत की भी शुरुआत की गई, जिसका लक्ष्य बच्चों को समझ के साथ पढ़ने और बुनियादी गणना की क्षमता को खेल खेल में विकसित करना है। स्कूल बैग के वजन और होमवर्क को कम करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और तनाव से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए मनोदर्पण पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कक्षा 6 से ही कोडिंग, डेटा साइंस, फाइनेंशियल लिटरेसी और हैंडीक्राफ्ट के वोकेशनल कोर्सेज को भी शामिल किया गया है और कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए सीबीएसई द्वारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जाम्स की चरण में उच्च कोविड संबंधी अनेकों शोध अनुसंधान किए और हमारे कई संस्थानों की ग्लोबल रैंकिंग में सुधार हुआ है। एक तरफ जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत की शिक्षा को विश्व से जोड़ती है, तो वहीं दूसरी तरफ उनमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को भी सशक्त करती है, नए भारत की आत्मा को प्राथमिकता देती और हमारी युवाओं को 21वीं सदी में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार कर रही है नई शिक्षा नीति। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो शिक्षा नीति के अंतर्गत लिए गए हमारे कुछ पहलों का कृपया बटन दबाकर उद्घाटन करें। विद्या प्रवेश कक्षा 1 की तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुझावों पर NCERT द्वारा बच्चों के लिए 3 माह का स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल विद्या प्रवेश तैयार किया गया है। इस पाठ्यक्रम में अक्षर, ध्वनि, शब्द, रंग, आकार और संख्या सीखने के लिए रोचक गतिविधियां हैं। इसके द्वारा बच्चों की पूर्व साक्षरता, पूर्व गणना और सामाजिक कौशल का विकास होगा। विद्या प्रवेश का लक्ष्य है शिक्षा के प्रारंभ से ही आधारशिला को मजबूत करना, ताकि सब समान रूप से समझ सकें, पढ़ सकें और बढ़ सकें। इंडियन साइन लैंग्वेज। पहचान कर मेरी सीमाएं और सामर्थ्य। किताब और अधिगम सामग्री अब उपलब्ध है भारतीय भाषाओं के समक्ष, भारतीय सांकेतिक भाषा में भी। सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए ISLRTC, NIOS और NCERT ने कक्षा 1 से 12 तक के 1200 से भी ज्यादा शैक्षिक वीडियो कार्यक्रमों को भारतीय सांकेतिक भाषा में बनाया है, जो दीक्षा मंच पर उपलब्ध हैं। अब मैं हूँ सबके साथ और सब है मेरे साथ। निष्ठा 2.0 दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, ताकि शिक्षक बच्चों की प्रतिभा को परखकर विकसित कर सकें। प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के प्रशिक्षण के बाद अब निष्ठा अपने नवनिर्मित 68 मॉड्यूल द्वारा माध्यमिक स्तर के 10 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए तैयार और प्रतिबद्ध है। निष्ठा 2.0 स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र प्रगति को सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय पहल। सफल स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग। CBSE के 25,000 स्कूल्स के ग्रेड 3, 5 और 8 के 50 लाख बच्चों के लिए तैयार किया गया है। इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट सफल में बच्चों का कोर कॉन्सेप्ट्स, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स द्वारा आंकलन किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई दुनिया का एक ईंधन है। भारत की AI रणनीति AI फॉर ऑल की सोच पर बना